Okay, today what we'll do is we'll do one problem on multi-stage compression. See, in yesterday's video we have done a problem on two-stage compression. This compression was done in two stages using intercooler. Perfect intercooling was there. So today what we'll do, today we'll do problem on multi-stage compression. Same it is, that is low pressure cylinder. In two stage compressions is there. Number of, see, not two stages, number of is the three stage. We are doing problem on three stage compression. Okay, what is given? The dimension of three stage single acting reciprocating air compressor. What is given? Low pressure cylinder bore is given 450 mm. The low pressure cylinder stroke is given. Clearance volume is, what is clearance volume? Vc is equal to 5% of swept volume. Okay, what is Vc? 5% of swept volume. Then intake pressure is given, that is P1. Intake means P1 only always. Then intake temperature T1 is given. Delivery pressure means what? C here. How many stages are there here? 3 stages are there. So P1 will be there, P2, P3 and P4 with the delivery pressure. So this is delivery pressure is what? P4. Index of compression and expansion is 1.3, N is given. Assuming ideal intermediate pressure and perfect intercooling. Okay, see here this problem is also three stage compression with perfect intercooling. Now what is there? What do you have to find out? We have to find the intermediate pressures. Means what? We should find out P2, P3, that are intermediate pressures. Then effective swept volume of low pressure cylinder. Effective swept volume of what? Low pressure cylinder. Next is the condition of air delivered at 1.5 megapascals and its volume per stroke, then work done per cycle per kg of air. Then what is given? R is given. R is also what? 0.287 kilojoules per kg Kelvin. The characteristic gas constant is given. See, what is the first step? The first step is to draw the PQ diagram. How to draw the PQ diagram? See here, how many stages are there here? 3 stage compression. Means see, this is low pressure compression. बीच में क्या है? इंटरकूलिंग है. ऊपर क्या है? हाई प्रेशर होगा. So 1 to 2 is 1 to 2 process, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 and 7 to 8. This is my processes. Now see, and what this dotted line indicates? The dotted line indicates ideal compression, that is perfect when there is a ideal process, that is when you are considering isothermal processes ideal condition, तभी क्या लेना पड़ेगा? डॉटेड लाइन इंडिकेट हो रहा है. अभी हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअल प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस ले रहे हैं यहाँ पे? क्वेश्चन में कौन सा दिया है? एक्सपांशन और कंप्रेशन P/N इज इक्वल टू कांस्टेंट पे है, दिस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे है. सो आई हैव टू कंसिडर दी, this is not dotted line, you have to consider these straight lines. Okay, dark lines. Now okay, now how many processes are there? See, 1 to 2, 3 to 4, 4 to 5, 6, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. Now this 9 to 10, 9, 10, 11, 12. These are the processes. So what is P1? P1 is your initial pressure, 0.101 megapascals. And P4, see how many, it is 3 stages now. So P2, P3 and P4. P4 is your final pressure, that is delivery pressure, 1.5 megapascals. Now see here, now what is one derivation we have done, right? P2 by P1 is equals to P3 by P2 is equals to P4 by P3, that is equals to what? X raised to n. We have calculated it. Now what is this? See, अभी ये कहाँ तक जा सकता है? n x raised to n तक जा सकता है. अभी हमारा प्रोसेस कितना है यहाँ पे? हम तो 3 ले रहे हैं, तो n कितना हो? 3 स्टेज कंप्रेशन बोले हैं. What they have said in the question, they have said that the compression is for 3 stages. Means what? n कितना हो हमारा? n इज इक्वल्स टू 3 हुआ, क्योंकि 3 स्टेज कंप्रेशन है. अभी 3 + 1 कितना हुआ? 4. P4 इनिशियल प्रोसेस होगा P1. P4 बाई P1 इज इक्वल्स टू व्हाट? x रेज टू n. अभी देखो P4 बाई P1 इज इक्वल्स टू x रेज टू n. अभी सिर्फ मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होगा? x क्या होगा? P4 बाई P1 रेज टू 1/n. ये सभी हम क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर डूइंग ऑल दिस प्रोसीजर इज आवर कंप्रेशन इज नॉट सिंगल स्टेज, इट इज़ 3 स्टेजेस. 3 स्टेज रहा तो ये प्रोसेस फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि हमको P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू x है, तो P2 का प्रेशर फाइंड करना है. P3 बाई P4 इज इक्वल्स टू x है, तो P3 फाइंड करने के लिए ईजी होगा. तो सो ये फॉर्मूला क्या है? Pn + 1/P1 इक्वल्स टू x रेज टू n. वी हैव डन दिस ऑलरेडी इन वन डेरिवेशन. अभी n हमारा, अभी 3 स्टेज कंप्रेशन है तो n 3 हुआ. 4 स्टेज रहा था तो Pn इज इक्वल्स टू 4 होता था. सो 3 स्टेज इसलिए P4 बाई P1 इज इक्वल्स टू x रेज टू n. सो वट विल बी x? P4 बाई P1 रेज टू, ये अगेन इधर गया तो 1/n. P4 कितना है? डिलीवरी प्रेशर है 1.5 मेगापास्कल्स. P1 कितना है? 0.101 है. और n कितना है हमारा? सी, इट इज़ नॉट, दिस n इज नॉट इंडेक्स ऑफ एक्सपांशन और कंप्रेशन, इट इज कैपिटल N, विच मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ स्टेजेस. डोंट कंफ्यूज विथ स्मॉल n. व्हाट इज दिस n? दिस n इज नंबर ऑफ स्टेजेस. व्हाट इज दैट स्मॉल n? इट इज इंडेक्स ऑफ एक्सपांशन और कंप्रेशन. ओके, दैट इज n. स्मॉल n, दैट 1.3, 1.4 कुछ भी. अभी देखो यहाँ पे n कितना है? 3 है. तो इफ आई कैलकुलेट दिस, हाउ मच आई एम गेटिंग? x वैल्यू एज 2.46. कितना मिला? x 2.46 मिला. अभी देखो डेरिवेशन से क्या पता चला हमको? आई हैव टोल्ड दैट P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू x है, तो P2 कितना होगा?
P1 into x, P1 हमारे पास ऑलरेडी है 0.101 मेगा पास्कल इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो P1 हाउ मच इज x, x is 2.46. हाउ मच विल बी P2, ना P2 विल बी 0.2485 मेगा पास्कल. ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर फाइंड करना था, सो इंटरमीडिएट प्रेशर है ये. नेक्स्ट क्या है, अभी देखो P3 P2 इज इक्वल्स टू x है, सो P3 इज इक्वल्स टू व्हाट, P2 इंटू एक्स. सो P2 x कितना है 2.46, P2 कितना है हम ऑलरेडी फाइंड किए थे 2.485. P3 मिला हमको, कितना मिला P3 0.61 मेगा पास्कल. अभी फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट हुआ, क्या, इंटरमीडिएट प्रेशर्स P3 एंड P2. ओके, बट इस नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम्स, राइट. अभी देखो फॉर लो प्रेशर सिलेंडर अभी आई हैव टेकन only this part. Only this part I have taken here and drawn in detail. See here. This now. See, I have taken this process. अभी देखो हमारे पास Vs. What is Vs? Vs is swept volume. अब डायग्राम से देखो क्या है, V1 minus V7 is nothing but Vs. यहाँ पे देखो फ्रॉम द डायग्राम वी नो दैट V1 minus V7 is Vs. और देखो V7 क्या है, V7 is equals to Vc, क्लियरेंस वॉल्यूम हुआ. अभी देखो और Vs क्या है, यहाँ पे देखें तो Vs क्या होगा, V1 हुआ. Vs इज इक्वल्स टू Vn. व्हाट इज Vs, स्वेप्ट वॉल्यूम है, कैसे कैलकुलेट करने का, π/4 d स्क्वायर इंटू एल. सो V1 इज इक्वल्स टू π/4 d स्क्वायर इंटू एल, दैट इज समथिंग बट इज इक्वल्स टू Vs. ओके, और Vn और भी क्या है, V1 माइनस V7 इज ऑल्सो Vs, और Vs प्लस Vc क्या होगा हमारा, Vs प्लस Vc इज अ टोटल वॉल्यूम. अभी देखो देन नाउ व्हाट इज Vs, Vs इज इक्वल्स टू V1, हाउ मच इज π/4, Vs कितना हुआ π/4 d स्क्वायर इंटू एल, d दिया है एल दिया है, तो V1 मिला कितना मिला 0.048 मीटर क्यूब. अभी क्वेश्चन में क्या दिए थे, क्लियरेंस वॉल्यूम Vc इज इक्वल्स टू 5% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम दिए है, क्वेश्चन में दिया है ये Vs. हाँ, Vc इज इक्वल्स टू 5% ऑफ Vs. सो 500 इंटू Vs कितना है, Vs इज इक्वल टू 0.048. हाउ मच विल गेट, Vc इज इक्वल टू 0.00024 मीटर क्यूब. दिस नथिंग बट योर Vc. अभी V1 कितना हुआ देखो, V1 इज इक्वल्स टू, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट दिस V1. V1 क्या है बोले हम, V1 क्या है, Vs प्लस Vc दोनों ऐड किए तो V1 मिलता, टोटल वॉल्यूम मिला. अभी Vs क्या है हमारा, Vs इज ऑल्सो नथिंग बट V1, हाँ Vs इज ऑल्सो V1 माइनस V7. सो V1 माइनस V7 प्लस V7. सो V1 माइनस V7 कितना है 0.048 प्लस 0.0024 इल गिव यू और इल गेट V1 इज इक्वल टू 0.0504 मीटर क्यूब. V1 फाइंड किए. और नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V8. हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V8. अभी V8 कैलकुलेट करना है तो कौन सा प्रोसेस लेना पड़ेगा, प्रोसेस 7 to 8. यहाँ पे ये वाला प्रोसेस क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है, पॉलिट्रिक प्रोसेस है ना. तो क्या होगा, P8 V8 रेस्ट टू P7 V7 रेस्ट टू n इज इक्वल्स टू व्हाट, P8 V8 रेस्ट टू n. हमको क्या चाहिए, हमको V8 चाहिए, तो V8 क्या होगा, V8 विल बी व्हाट, V7 इंटू P7 और P8 रेस्ट टू 1/n. ये n इधर है, इधर जाके 1/n होगा. अभी देखो P7 क्या है, सी व्हाट इज P7, P7 इज इक्वल्स टू P2. डायग्राम में क्या है, P7 इज इक्वल्स टू P2. व्हाट इज P8, P8 इज इक्वल्स टू Pn. सो P2 कितना है हमारा, P2 हमने फाइंड किया था, कितना आया था P2, 0.2485 P2 था. P1 कितना है 0.1 है, क्वेश्चन में दिया है. तो हम चल गए V7 हमने फाइंड किया है. व्हाट इज V7, सी V7 नथिंग बट V7 कितना है, Vc है, और Vc कितना है हमारा 0.0024. सो 0.0024. Okay, see V7 is equals to not V7 is equal to 0.0, V7 is equals to V1, that is 0.07, sorry 0.0504 into P7 of raised to 1/n. अभी यहाँ पे n कौन सा लेना है, इंडेक्स ऑफ एक्सपांशन कितना है ये 1.3. I'll get how much now, V8 is equals to 0.004 मीटर क्यूब मिला. अब इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम कितना आया, V1 माइनस V8. भी देखो सी V1 माइनस V8 अगर लिए तो ये वाला ये पोर्शन क्या है, VES इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम है. अगर V1 माइनस V7 करें तो क्या होता है, VS स्वेप्ट वॉल्यूम होता है. और सिर्फ VC यहाँ से कंसिडर किया तो V7 इज इक्वल्स टू VC क्लियरेंस वॉल्यूम हुआ. अब इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, V1 माइनस V8. V1 हमारे पास है, V8 हमने कैलकुलेट किया. हम गेटिंग VES इज इक्वल टू 0.0456 मीटर क्यूब. अभी हमको क्या फाइंड करना है, हमको T4 फाइंड करना है. वाई एम डूइंग ऑल दिस टू कैलकुलेट द वर्क डन. सो T4 फाइंड करना है, तो T4 के लिए प्रोसेस 4 to 10. यहाँ पे देखो सीयर प्रोसेस दिस वाला प्रोसेस ऊपर का हाई प्रेशर प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं हम. तो क्या होगा T4 by T10, ये वाला प्रोसेस 4 to 10. सो विच प्रोसेस इट इज, अगेन इट इज विच प्रोसेस, इफ आई एम कंसिडरिंग इट एज पॉलिट्रिक प्रोसेस. क्या होगा T4 by T10 इज इक्वल्स टू P4 by P10 raised to n minus 1/n. सो व्हाट विल बी T4 into P4 by P10 raised to n minus 1/n. अभी T10 देखो फिर से
सी व्हाट इज T4? T4 T4 is equals to T10 is equals to what? T10 is equals to T1. ये ऐसा प्रोसेस है ना, ये देखो आई एम कंसिडरिंग डॉटेड लाइन. सो विच प्रोसेस इट इज़? ए वाला कौन सा है? आइडियल रहा तो आइसोथर्मल हुआ, आइसोथर्मल बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ. ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं. सो T10 विल बी व्हाट? T10 विल बी इक्वल टू T1. यहाँ पे फ्रॉम द डायग्राम यू नो दैट T10 इज इक्वल्स टू T1. और देखो नेक्स्ट इज व्हाट हैव टेकन T4 is equals to T10 and P10 is equals to what is P10? P10 is equals to P3. See how? See P10 is equals to P3. एक ही लाइन में लाइन हो रहा है, देखो ऑल लाइन में सेम लाइन. सो व्हाट विल P10? P10 is equals to P3 हमने कैलकुलेट किया था ऑलरेडी. सो P4 व्हाट विल T4? T10 कितना है? T1 293, P4 1.5 आप और P10 कितना? P3 इज 0.61 रेज़ टू 9-1/n. कितना है T4? आप कैलकुलेट करने के बाद में कितना आएगा? 360.65 केल्विन्स. अभी हमको क्या चाहिए? वी वांट टू कैलकुलेट नेक्स्ट व्हाट इज दैट इफेक्टिव स्टेप वॉल्यूम फॉर दी सेकेंड स्टेज कंप्रेशन, दैट इज V4 माइनस V5. क्या होगा देखो, P4/T4 इंटू V4 माइनस V5 इज ऑलवेज इक्वल्स टू P1/T1 इंटू V1 माइनस V8. हमको क्या चाहिए? V4 माइनस V5 चाहिए. सिर्फ वो व्हाट विल बी P1/P4 इंटू T4/T1 टू 1 माइनस V8. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यूज वी आर हैविंग P4 है हमारे पास, T4 T1 है, V1 माइनस V8 दोनों भी है. कितना मिलेगा? V4 माइनस V5 0.0038. और नेक्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट दी वर्क डन विद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर वर्क डन. हाँ P1 सी क्वेश्चन में हमको वैल्यू R दिया है क्वेश्चन में. सो PV विल बी व्हाट? PV इज इक्वल्स टू MRT. किलो जूल पर केजी है, ये क्या है? किलो जूल्स पर केजी केल्विन है. तो पर केजी बोले तो YM कितना हुआ? M इज इक्वल्स टू 1 kg हुआ. T1 है हमारे पास. सो सी और व्हाट दिस कैपिटल N रिप्रेजेंट्स? कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ स्टेजेस है. क्या है? नंबर ऑफ स्टेजेस. हमारा कितना स्टेज है यहाँ पे? वी आर हैविंग 3 स्टेज कंप्रेशन. सो डू व्हाट? 3 N कितना है? 1.3 0.3.3 R दिया है. T1 हमने हमारे पास है. P2 P1 है कितना है? P2 P1 कितना आया? व्हाट इज P2 कितना है? 1.5 नॉट 1.5. P2 कितना है? कम हियर. हाउ मच P2 0.2485 डिवाइडेड बाय P1 इज 0.1. आई एम गेटिंग 2.46. अगर सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करें तो 2.46 आया. n माइनस 1 कितना है? 0.3/1.3 माइनस 1. सो आई विल गेट हाउ मच? वर्क डन एज 252.4 किलो जूल्स पर केजी. दिस वाज द प्रॉब्लम ऑन मल्टी स्टेज कंप्रेशन. कितना स्टेज का? ये 3 स्टेज कंप्रेशन हुआ. कल कितना किए थे हम? 2 स्टेज किए थे. सी नाउ इफ यू डू वन मोर प्रॉब्लम दिस लाइक वी विल कंप्लीट ऑल चैप्टर ऑफ प्रॉब्लम्स. ऑल द प्रॉब्लम्स आर कंप्लीटेड. सिंगल स्टेज हुआ, मल्टी स्टेज हुआ, सिंगल सिलेंडर, डबल सिलेंडर, सभी प्रॉब्लम्स रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के खत्म हुए. नाउ व्हाट विल डू इन टुमारोज क्लास? विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट यूनिट ऑफ दिस सेम मॉड्यूल. ओके.